Okay, we are going to do part two of coordination compound beta. Today, the very first important question beta, they will ask you whether a coordinate compound which is being formed. Okay, so what factors affects its stability? What factors affects its stability? Okay, so suppose beta, if I want to prepare a coordinate compound, I'll take metal, then I'll take ligand, and then I'll get this coordinate complex, right? So some charge will be there, n plus whatever it is there beta. I'm writing here this way. So now, and ligand is Ln type. So yeah. So now, you remember beta in lower standard we have studied beta equilibrium constant. Equilibrium constant whenever we apply, what we write beta? Product upon reactant. What we write? Product upon reactant. So K is equal to what? Product में कौन है? This complex is there. And reactant में who is there beta? Metal and what beta? Ligand. Now we are interested in the product side beta. Product कब बनेगा? When product will more product will be, because this reaction is reversible, so I want to go in forward direction. So when the product will be favored beta, when the value of K will be more, K will be more value, so higher value of this beta, more will be the stability of the coordinate compound. क्यों ऐसा? Why? Advik, tell me when K will be more, when denominator will be more or numerator? Tell me. This value should be what beta? So More when numerator. numerators more. Numerator will be more. So if numerator is more means my reaction is favoring with direction forward. So now we'll Forward ask direction. what type of question they will ask. The first question, if the value of K, we call it as stability constant. K का हम लोग ने क्या नाम दिया है बेटा? Stability constant. तो stability constant ज्यादा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा. So if the value of K is higher, more will be the stability. So this point you have to remember. But बेटा ये देखो मेन ये पूरा भी मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके लिए आपको खाली ये याद रखना है. हायर द वैल्यू ऑफ higher the value of stability constant, that is K, greater is the thermodynamic stability of the complex solution. Now in exam what type of question Viyati they will ask beta? I'll give you aisa four values beta. This and this. And I'll ask you who is the most stable. They will give you the value of K. Now Viyati you only tell me beta, we have studied higher the value of K, greater will be the stability. So which is the highest value? The last one, 5 into Yeah, 10. don't see this. We have to see this also, the power of this. So this will be the most stable. Understood? Clear? Adi, what type of question they will ask? They will give you four values of K and they will tell you which is the most stable, or arrange them in the increasing order of stability or decreasing order. Will you be able to do it? Now Yes, next sir. question. Now next question beta, it depends upon the nature of ligand. It also depends upon the nature of ligand. Ligand may what we have to do in that case, if they whenever they say nature of ligand, then what we'll have to do beta? I will give you two ligand or four ligands. Suppose I have given here this two. Now tell me beta, दोनों में metal is same or not? Tell me. Metal is same, right? So who is changing? Ligand is changing. Yes. Now one thing you have to remember beta, stronger the ligand, greater is the stability. Provided metal ion should be same. Look, here metal are same, both metal are same, so we'll see what? Ligand. अभी ligand में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? Who is more stronger बेटा? First we have done carbon donor. Remember बेटा, carbon donor is more stronger. Then we have nitrogen donor. तो इसमें से साइनाइड और अमोनिया में कौन स्ट्रॉन्गर है? हु इज मोर स्ट्रॉन्गर? ऑल आर स्ट्रॉन्ग ओनली, बट हु इज मोर स्ट्रॉन्गर? आदिव. Cyanide. हाँ, सो दिस वन विल बी मोर स्टेबल. क्लियर? राइट. Yes. सो देखो बेटा, इसका वैल्यू देख, के का वैल्यू बड़ा है ना बेटा, दिस इज मोर स्टेबल. ओके, चलो. नाउ one more thing you have to remember beta, in ligand I am giving you can write here, there is a place. If beta there are a chelating ligand are more stable. Chelating ligand are more stable. Means what? Dekh Adi beta, I'll give you this two example I'm giving you. Here I've written beta, Fe, and I've written here En twice. Okay, 2 plus. And I've given you here Fe, metal is same only, 4 ammonia. Now who is chelating in this beta? Come on, Adi, chelating मतलब ऐसा Sir, रिंग वाला कौन सा है इसमें? Fe. En ना बेटा, फर्स्ट वाला, तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल.
वाई बेटा, जितना रिंग कंपाउंड बनेगा दैट इज मोर स्टेबल, सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। ओके, ये खाली पॉइंट डाल दो उसमें बेटा, चिलेटिंग लिगेंड आर मोर स्टेबल। वाई? बिकॉज जितना ज्यादा रिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो अभी आप बोलोगे सर आपने तो ये फिर एक लिगेंड कौन चेंज से होने पेज वाला पे लिखना है हाँ आप एक बोल बार बेटा। बोल सकते हो? हाँ, तो एक कौन से पेज पे लिखना है आप एक बार बोल सकते अरे यार ये पेज अभी ढूंढना नोट्स में, जहां पे तेरे को ये स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है, पीछे से चौथा पांचवा पेज होगा, देखना बेटा। नेचर ऑफ लिगेंड, फोटो ले ले, बाद में लिख लेना वहां पे, मैच कर लेना ये, ठीक है? जल्दी कर। हो? हाँ सर। क्वेश्चन कैसा आएगा समझ में आएगा ना, ऐसा आई गिव यू एग्जांपल। नाउ वन मोर, इसमें स्टेबिलिटी में बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट वी स्टडीड, हायर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा चार वैल्यू दे देंगे, हु इज मोर स्टेबल। देन बेटा ऐसा दो देंगे तो बेटा वी हैव टू रिमेंबर हु इज स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड विल बी मोर स्टेबल, प्रोवाइडेड मेटल इज सेम। हियर आल्सो बोथ मेटल वेर सेम, देन विल सी द नेचर ऑफ लिगेंड, इफ इट इज चिलेटिंग देन इट विल बी मोर स्टेबल, चिलेटिंग देन इट इज व्हाट बेटा, मोर स्टेबल। नाउ अभी क्या होगा बेटा, लिगैंड विल रिमेन सेम बट मेटल विल चेंज, लिगैंड विल रिमेन सेम एंड मेटल विल चेंज। उसका क्या होगा, ये हो गया कॉपी करके, डन डन हाँ सर। डन। चलो, अभी बेटा आई एम गिविंग यू टू कॉम्प्लेक्स बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द मेटल ऑल्सो बेटा। नाउ इफ आई गिवन यू टू एग्जांपल, लुक हियर, आई हैव गिवन यू टू एग्जांपल, कॉपर, दोनों में कॉपर कॉपर है, दिख रहा है बेटा, कॉपर एंड अमोनिया एंड कैडमियम एंड अमोनिया, तो अब लिगेंड आर सेम और नॉट, टेल मी, बट metal is changing. So which one will be more stable? So for that, beta, you have to see the smaller the size of metal, more will be the stability. So who has more smallest size? Is copper having smaller size or cadmium? Tell me. अरे ये देखना, वैल्यू देखना, किसका छोटा है, इसका। ठीक है, तो कॉपर विल बी मोर स्टेबल, देख रहा है बेटा स्टेबिलिटी, स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। इसको क्या किसने बनाया था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था अर्विंग विलियम ऑर्डर। So Irving William Order, what it says, beta, if the metal is changing, ligand are remaining same, then what we have to do? Smaller the size of cation, greater the is the stability. Clear? So stability may be studied four things. Higher the value of K, greater is the stability. Then beta strong field ligand, metal provided remaining constant, then it is more stable. Strong field one. And chelating ligand is more stable. But if beta ligand remains same, and if metal is changing, the smaller size of the metal will be more stable. Now we go to the next part. Okay. Okay. Yesterday we studied valence bond theory. Beta, valence bond theory, whenever we did it, we studied that it is diamagnetic, para, hybridization, everything. But beta, it failed to explain what, beta? It failed to explain color. Did it explain anything about color? No. It failed to explain actually, beta. Which is the strong field ligand and which is the weak field ligand. तो आप बोलेगे सर आपने तो बताया तो था, अरे बेटा वो हम लोग ने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कहां से लिया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लिया था बेटा। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो गिव्स बट एग्जैक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इट इज नॉट गिविंग। ओके, सो वी हैव टू स्टडी नाउ न्यू थियरी, एंड द न्यू थियरी इज व्हाट बेटा, क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी बेटा वो सिमिलर ही है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थियरी मतलब थोड़ा चेंजेस है, वो क्या होता था पहला तो क्रिस्टल फील्ड थियरी, व्हाट इट सेज, मेटल इज अ कटायन एंड लिगेंड इज एन एनायन। Okay, and it strongly states that it forms which bond beta, ionic bond, covalent bond nahi, ionic bond. Okay, so what is crystal field theory beta, I'll just explain you, very simple beta. Look beta, suppose I am a metal, d orbital, d orbital may we already studied there are how many phi houses, right na beta. Now my how ligand can approach beta, ligand if it approaches along the axis, if ligand approaches beta, suppose my this is my metal, these are my axis. Okay. So if ligand will approach along the axis, ligand यहाँ पे approach कर रहा है metal को. So what will happen? How many orbitals are there along the axis? Beta 2. Remember beta Eg. So what will happen? When ligand will approach to the metal, metal के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ligand के भी अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल होगा, और ये जो ऑर्बिटल्स थे जिनका सेम एनर्जी लेवल था, इट विल ब्रेक into what beta,
if it is coming along the axis में who will go up, dx square, जहां जिसमें भी स्क्वायर होता था, eg will go up and 3t2g dx by dyz will remain below. और इसके बीच में ये जो गैप होगा बेटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 10 dq. हाउ मच इज द वैल्यू, 10 dq, और वी कॉल इट एज डेल्टा जीरो. ये O क्या होता है बेटा, O इज ऑक्टाहेड्रल. दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बेटा, लिगेंड विल ऑलवेज अप्रोच अलोंग द एक्सिस. फिर उसने और एक चीज बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उसका एनर्जी इंक्रीज किससे होगा बेटा, आइदर इट विल इंक्रीज बाय 6 dq और 0.6, एंड हियर द वन विच गो बिलो उसका एनर्जी डिक्रीज होगा बेटा, इट्स वैल्यू विल डिक्रीज बाय 4 dq और 0.4 डेल्टा. अभी आप बोलेगे सर इसका क्या है, देख बेटा, मेटल को लिगेंड ने अप्रोच किया तो फील्ड जनरेट हुआ, वो फील्ड से वो स्प्लिट हो गया बेटा, इसलिए इसको क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ठीक है. अभी आपको बेटा ये बुक में आपको है ना ऐसा पॉइंट्स, आपके एनसीईआरटी में बेटा 0.6 पॉइंट ये नहीं दिया है, वहां पे आपको वैल्यू दिया है बेटा, इसका दिया है बेटा एक मिनट, 0.4 क्या था बेटा, 0.4 इट वाज आई थिंक 5/, नहीं नहीं 5/2 नहीं, 38, हाँ 3/5. ऊपर वाला कितना है बेटा, 3/5 डेल्टा, और नीचे वाला क्या दिया है बेटा, 2/5. 2/5 डेल्टा. अरे 2/20/5 करेंगे तो 0.4 आएगा कि नहीं, बोलो बेटा, राइट. अच्छा, इसका यूज क्या है बेटा, अभी आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है. इससे हम लोग बेटा पता कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई कैन डिसाइड हु इज मोर स्टेबल एंड हु इज लेस स्टेबल. ओके. लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी. अच्छा, नाउ टेल मी बेटा, इफ आई हैव 4 ligands, आदि बेटा, इफ आई हैव 4 ligands, okay, now what will happen beta, if you see this splitting is happening, acha, this value depend upon what beta, this distance will depend upon nature of ligand, strong field, then this will be what, if delta 0 is more beta, if delta 0 is more, अच्छा मैं यहाँ पे आजू बाजू में लिख देता बेटा, यहाँ पे आई एम राइटिंग फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड, so this will be more, delta 0 more for what, strong field, and for weak field this will be small. So now you only tell me beta, if I am having 4 electrons, so here 1, 2, 3. Now this fourth electron won't go into Eg beta because the distance is more, so it will pair. Here what will happen beta, 1, 2, 3, and fourth electron will go up or not, tell me. So one question they ask, if value of delta 0 is more than normal energy, then what will happen? Pairing will take place. Can you see beta, there pairing is taking. If delta, here pairing is taking, pairing. And here what is happening beta, if delta 0 is what beta, small. So what will happen? Unpairing. So if delta 0 is less, then what will happen? Unpairing. Clear? And here delta 0 is more. So here pairing. तो MCQ में आ सकता है, if delta 0 is more, then what you will say beta? Pairing take place. If delta 0 is small, then unpairing take place. अच्छा, अभी बेटा एक याद रखने का इसमें भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. If they ask you to find energy, तो लोअर में जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस. कितना होगा बेटा, इफ आई राइट इन डी क्यू, इट वॉज 4 dq ना बेटा, और ऊपर जाएगा तो क्या करने का, +6 dq करने का, +60, और फिर दोनों को ऐड करने का, तो ओवरऑल एनर्जी मिलेगा. इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका नेगेटिव, और ओवरऑल वैल्यू देखने का, लोअर द वैल्यू हायर द स्टेबिलिटी. सपोज आई हैव गिवन यू हियर 5 इलेक्ट्रॉन्स, चलो बेटा आ जाओ, आई हैव गिवन यू हियर 5 इलेक्ट्रॉन, लेट अस से माय 5 इलेक्ट्रॉन आर गोइंग दिस वे, इन दिस. तो नीचे कितना गया बोलो बेटा, नीचे के लिए हम लोग क्या लिखते थे, -4 इंटू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बोलो 3. ऊपर कितना गया, 2, तो 2 × 6. ऊपर के लिए कितना हम लोग बढ़ाते थे, बोलो बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गया ना ऊपर, कितना वैल्यू था, 6 था कि नहीं. अरे यार ये अरे भाई ये देखना, अच्छा मैं लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 6 dq प्लस होता है, यहाँ पे -4 होता है. सो व्हाट विल हैपन, अबव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वेयर गॉन बेटा, 2. Here how many were there beta, 3. So what I'm going to get, 3 into -4 plus 2 into +6. तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा बोलो बेटा, -12 प्लस 12, तो 0 आ जाएगा. सपोज बेटा मैंने अगर आपको ऐसा केस दिया है, वेर 1, 2, 3, 4 ऑल पेयरिंग, यहाँ पे आ गया, ऊपर कुछ नहीं गया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, बोलो
नीचे के लिए कितना डी क्यू था, -4, तो -4, और इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो बेटा, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो बेटा, -16। तो नाउ टेल मी बेटा, हियर इट वाज 0 डी क्यू, हियर तो हु इज द लोअर, दिस, सो दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर, राइट? Now, we have also studied one more thing, beta. A, if it comes along the axis, beta, what will happen? Eg will go up and T2G will remain below. This is for which complex? Octahedral. This is for which complex? Octahedral. O stands for octahedral. A, आदि बेटा अगर along the axis, between the axis आएगा तो क्या होगा? Between the axis. Suppose my this I am metal and ligand is coming in between. In between कितने लोग होते हैं बेटा? Between ligand is approaching. तो बिटवीन में कौन होता है बेटा? T2G। ये बेटा बिटवीन है ना, तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो आई विल गेट द अपोजिट डायग्राम और नॉट, टेल मी। अभी मुझे ऐसा डायग्राम मिलेगा, T2G और Eg नीचे रहेगा। यहाँ पे देखना बेटा, T2G नीचे था ना, यहाँ पे T2G ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे Eg विल बी बिलो। अच्छा, अभी आपको पता है बेटा, यहाँ पे भी ये बिलो जाएगा तो इसका कितना डिक्रीज होगा, माइनस, इसका उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे 6 था DQ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 DQ, और ऊपर कितना हो जाएगा, 4 DQ। एंड दिस इज फॉर विच? टेट्राहेड्रल। तो डेल्टा टी लिखेंगे। देखिए मैंने दिया है यहाँ पर, देखो बेटा, देख यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो बेटा। फर्स्ट व्हाट वाज रिटन हियर, लुक ना बेटा, इफ इट कम्स अलोंग द एक्सिस, देख रहा है? ओके, 5D generate of ligand approaches along the axis. This is along the axis. And if ligand approaches बेटा between the axis, between the axis का कहाँ पे दिया बेटा, ये देख। अरे between the axis किधर गया? ये रहा, ये between the axis है। between the axis में क्या हो रहा है बोलो बेटा, देख T2G ऊपर आ गया, ये नीचे, नीचे 6 DQ हो जाएगा, ऊपर उल्टा हो जाएगा बस। और यहाँ पे T लिखा है, T मीन्स व्हाट बेटा? अरे देख रहे यहाँ पे डेल्टा T लिखा है, वहां पे डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल था, ये क्या है, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो ये सब लिखा है, आप पढ़ लेना बेटा, देखना। इफ लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम, कहाँ पे लिखा है बोलो बेटा, बिटवीन। क्लियर है? और वहां पे क्या लिखा था बेटा, इफ लिगेंड अप्रोचेस अलोंग द एक्सिस। ठीक है बेटा, यहाँ पे पढ़ोगे ना तो कहाँ पे लिखा रहेगा बेटा, अलोंग द एक्सिस। ठीक है ना बेटा? क्लियर? हाँ, राइट। चलो, तो यही है बस, इसमें बस खाली वैल्यूज आपको पूछेंगे बेटा, डालना है वैल्यूज। देखना ये एनर्जी का, देखना -4, T2 में जे ऐसा, तो वही वैल्यू डाल देना बेटा। लेकिन वो लोग इतना क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं, खाली आपको समझना है व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल एंड व्हाट इज टेट्राहेड्रल। नाउ वी डायरेक्टली गो टू बेटा मेन, वर्नर्स थियरी। वर्नर्स थियरी आ जा, वर्नर्स थियरी। इस पे क्वेश्चन आता है वर्नर्स थियरी पे बेटा, एंड आइसोमेरिज्म, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आर गोइंग टू कवर टुडे। वर्नर्स थियरी, देख बेटा, वर्नर्स थियरी। ओके, व्हाट इज वर्नर्स थियरी? तो बेटा इन इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स देयर आर टू वैलेंसी, मेटल सेटिस्फाई टू वैलेंसी। विच आर दीज टू वैलेंसी? वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड वन इज सेकेंडरी। क्या होता है मैं सब बताता हूं बेटा। प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, ओके, एंड दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव। क्लियर है? अब बेटा मैं तुमको बता देता, सपोज मैंने ना आपको ये पूरा लिख के बताता हूँ, ऐसा मत करो, यहाँ पे आ जाते पहला मैं आपको ना, मैंने जो लिखा है ना, हाँ ये वाला देखो। मेटल हैज टू वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मेटल सेटिस्फाई बोथ, नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड, ओके, एंड सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड व्हाट बेटा, ओरिएंटेशन। और देख यहाँ पे वो भी वही लिखा है नीचे, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। It we write with dark line, rigid. Here with this light in non-rigid. इसका डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, इसका डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होगा। डार्क ये रिजिड वाला सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल। ये आयनाइजेबल इज सेटिस्फाइड जनरली बाय नेगेटिव। दिस इज डायरेक्शनल, दिस इज नॉन डायरेक्शनल। अभी मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, ये लो, डायरेक्टली बताओ मुझे। देखो बेटा, मैंने अगर आपको ऐसा लिख के दिया है, कॉपर अमोनिया 4, बाहर ऐसा क्लोराइड लिखा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है बोल बेटा, क्लोरीन है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी वैलेंस, आयनाइजेबल पार्ट है ना, काउंटर आयन, सो इट इज योर प्राइमरी वैलेंसी। और इसके अंदर ये कौन थे, लिगेंड बेटा, देख नहीं, लिगेंड अभी बेटा अगर है तो इसका फिक्स ज्योमेट्री होगा ना बेटा ऐसा, तो इसको डार्क लाइन से हम लोग बनाते हैं, अमोनिया अमोनिया अमोनिया। सो दिस इज योर सेकेंडरी वैलेंसी, दिस इज योर विच वैलेंसी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज जनरली सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव। प्राइमरी विल बी ऑलवेज बेटा, नेगेटिव लिगेंड और नेगेटिव आयन। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछूंगा मैं इससे रिलेटेड, सुनो पहला क्वेश्चन पे ध्यान दो।
So whatever is inside the bracket, we call it as beta inner sphere. Inner sphere. Inner. And this is ionizable part. This is your ionizable part. अभी इन एग्जाम आई गिव यू दिस. चलो बेटा, अभी एक चीज याद रखो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कभी न्यूट्रल नहीं आएगा. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कभी न्यूट्रल लिगेंड नहीं आएगा. सपोज बेटा आई गिवन यू दिस कोबाल्ट, एंड आई गिवन यू कोबाल्ट, आई गिवन यू, देन आई गिवन यू बेटा 6 अमोनिया एंड 3 क्लोरीन. ऐसा मैंने आपको दिया है. अभी आई टेल यू मेक अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. चलो आदि बेटा, मैक्सिमम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 लोग आ सकते हैं. मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं ऑक्टाहेड्रल में? 6. तो मैं कोबाल्ट लिखूंगा. स्क्वायर ब्रैकेट अभी मुझे पता ही नहीं इसका फॉर्मूला क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला? आई डोंट नो, तो आई हैव टू मेक इट. हु इज न्यूट्रल हियर? टेल मी. अमोनिया इज न्यूट्रल एंड दिस क्लोरीन इज अमोनिया। हाँ. तो न्यूट्रल कभी भी बाहर नहीं जाएगा, तो सारे न्यूट्रल मैक्सिमम अंदर 6 लोग आ सकते हैं. तो ये तेरा 6 कौन हो जाएगा? बोलो बेटा. ऑल 6 विल बी व्हाट? अमोनिया. राइट बेटा? ऑल 6 विल बी अमोनिया. सो हाउ मेनी ऑफ देम विल गो आउटसाइड? अभी बाहर कौन जा सकता है बोल? अरे भाई क्लोरीन। मेरे, तूने 6 अमोनिया को अंदर ले लिया, तभी क्लोरीन कितना है तेरे पास? 3। हाँ, तो तीन यहाँ पे Cl3 लिखने का हो गया. अच्छा, ये तेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया. देखिए रिजिड लाइन से बनाया कि नहीं? अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाता है वो आयनाइजेबल होगा कि नहीं? अरे बेटा, इसका तो अगर आयन बनाएगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं आयंस? यस सर। ये 3+ और ये 3Cl-. तो अभी ये जो Cl- होता है वो लोग, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसा डॉटेड लाइन से बनाते हैं. अभी समझाओ. प्राइमरी वैलेंसी शोन बाय डॉटेड लाइन, इट इज नॉट फिक्स्ड. बट दिस इनसाइड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज फिक्स्ड. अच्छा, इन एग्जाम व्हाट क्वेश्चन आई आस्क यू नो बेटा, इफ आई गिव यू दिस एंड इफ आई टेल यू इफ आई मेक इट रिएक्ट विद AgNO3, कितना AgNO3 के साथ ये रिएक्ट होगा बताओ? हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgNO3 इट विल रिएक्ट विद? हाउ मेनी क्लोराइड इट इज हैविंग यार? टेल मी. 3 ना बेटा? So it will react with how 3। many moles? 3 moles of AgNO3 and it will give you 3 AgCl, 3 precipitate you will get. Clear? Now I'm giving you one question you have to answer. Chalo. I've given you cobalt, 5 ammonia and 3 chlorine. चलो इसका 3 chlorine, sorry. इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ. मैक्सिमम ब्रैकेट के अंदर कितना होगा बेटा? 6 लोग हो गए. अरे बता भाई मेरे, क्या करेगा? अंदर कौन आएगा? अमोनिया कितना है? अमोनिया कभी बाहर आएगा क्या आदिफ? नो ना? नहीं। तो 5. लेकिन अंदर 6 लोग होना चाहिए, तभी तेरे पास क्या करेगा? ये 3 क्लोरीन में से एक को अंदर लेगा कि नहीं बोल? हम्म। हाँ, तो अभी बाहर क्लोरीन कितना होगा? Cl2। वेरी गुड. तो अभी तू मेरे को बता, ये दो ही आयन बनाएगा तो कितना AgNO3 के साथ रिएक्ट होगा? ये हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgNO3 इट कैन रिएक्ट विद? 2। वेरी गुड. ओके, अभी इसका ये कॉम्प्लेक्स बन गया तुम्हारा. अभी इसका अगर आपको समझा ना, इनर स्फीयर में टोटल कितने लोग हो गए बेटा? 6. 6 में कौन होगा बेटा? देख, 5 तो अमोनिया होगा. तो लुक ना, कैन यू सी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लिगेंड. और यहाँ पे अभी पहली बार कौन आ रहा है? नेगेटिव भी आ रहा है कि नहीं बेटा? ये देख, बाहर कितना क्लोराइड होगा बोलो बेटा? उसका कोई कहाँ पे भी बना सकते हैं ऐसा डॉटेड. 2 क्लोरीन. इजी. सपोज इफ आई गिव यू दिस, देन कोबाल्ट 4 अमोनिया, Vyati, you tell me beta, and 3 chlorine. So now what you will do beta? So cobalt and ammonia will go inside. Ammonia, how many ammonia will be Yes. inside? 4. But I should have maximum Two 6. Then what chlorine. I am going to do? 2 chlorine. 2 chlorine. So outside how many chlorine will be there? 1. So how many AgNO3 molecules it can react with? 1. So how many PPT it will give you? Only 1. Clear? कितना इजी था बेटा? ये हो गया बेटा, ये देख. So here I have given all this only बेटा. देखना बेटा, ऐसा I'll give you and I'll tell you to make the formula. Clear? Now here सर I'll डाउट। I'll show you the question also. Look बेटा, here आ जाओ इधर पे. अच्छा, सर जरूरी नहीं वन है डाउट। 6, कभी कभी. हाँ यार, टेल मी बेटा. सर जो मतलब मेटल के हिसाब से कोवालेंसी को डालना होता है ना? नहीं नहीं, वो आपको बोलेगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 4. यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन दे दिया था ना, कोऑर्डिनेशन ओके। नंबर 6. राइट? ओके सर, ठीक अच्छा, है। अभी देख हाँ। क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा. देख देख यहाँ पे अभी ये देख, ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन है बेटा. दीज आर द क्वेश्चन. ठीक है ना बेटा? मैंने देख इसको इसके साथ रिएक्ट किया, किसको? देख ये दिया था. अभी मेरे को पता नहीं, मैंने AgNO3 के साथ डाला, मेरे को 3 AgCl मिला.
अभी तेरे को 3 AgCl मिला, तो अभी तू मेरे को बता कितना क्लोरीन बाहर होना चाहिए था, बोल बेटा। अबे 3 AgCl मिला मतलब 3 क्लोरीन बाहर होना चाहिए था कि नहीं, ये देखना बेटा। राइट। ओके। अगर 2 AgCl मिलता था तो खाली 2 क्लोरीन ही बाहर होता था बेटा। देखना 2 AgCl मिलता तो 2 क्लोरीन बाहर होना चाहिए था। तो देख अभी ऐसा एग्जाम में आएगा बेटा, ये देख अभी तेरे को मैंने ऐसा दिया है, और यहाँ पे मैंने तेरे को ना ऐसा क्वेश्चन पूछा है बेटा। अच्छा मैं तेरे को एक क्वेश्चन बता देता, ये ले, डायरेक्टली बता मेरे को। चल मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व। आदिफ, क्या लिखा है पढ़। अरे आदिफ आदिफ कोई भी देखना, ये वाला 9.1 क्या लिखा है पढ़। 1 mole of purple colored अभी complex देख CuCl कोबाल्ट from क्लोराइड अमोनिया मुझे पता नहीं, लेकिन उसने कितना प्रोड्यूस किया AgCl, 2 moles. और वो लोग ने कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया है 6। तो तू क्या हम्म लिखेगा, कोबाल्ट 2 मोल्स AgCl किया तो बाहर कितना क्लोरीन होगा बोल बेटा। 2 क्लोरीन बाहर। हाँ। तो अच्छा अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो टोटल कितना होना चाहिए था तेरे पास बेटा। देखो यहाँ पे क्लोरीन का नंबर फिक्स दिया है, 3 दिया है, तो एक क्लोरीन अंदर आएगा, तो तो बाकी एक सब कौन। अंदर और 5 NH थे। वेरी गुड। क्लियर है। यस सर। चलो बेटा ये देख आया कि नहीं। अच्छा चलिए इसका आंसर क्या होगा बोलो। आद्विक ट्राई करेगा क्या, देख यहाँ पे कितना AgCl बाहर आया मेरे पास। अरे आदिव का नहीं चल रहा, और सर हाँ कौन बोलो। से वाले में? ये वाले में। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है वो लोग ने, देखा ऐसा हाँ कर। सर। एक मोल। एक क्लोरीन बाहर हाँ आएगा कि नहीं। सर। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेकिन तेरे पास क्लोरीन का नंबर वो लोग ने हाँ, फिक्स दिया है, 3 दिया है, तो 3 में से 2 क्लोरीन अंदर आएगा, तो बाकी क्या होगा, 4, बाकी 4 क्या होगा बोल। अंदर दो आयरन। हाँ, हाँ हो गया। NH3। बरोबर है। तो यही यहाँ पे लिखा है बेटा, ये देखिए ऐसा। कभी कभी ये भी पूछेगा किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा। बेटा इसमें टोटल आयंस कितना प्रोड्यूस होगा, देखना ये 3 क्लोराइड और एक स्क्वायर ब्रैकेट का आयन, तो इट विल हैव हाईएस्ट कंडक्टिविटी। नंबर ऑफ आयंस ये कितना प्रोड्यूस करेगा, 4। एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और ये 3 क्लोरीन दिखाई दे रहा है, ये कितना करेगा, 3, ये 2। देखना बेटा जितना बाहर है उसका और एक स्क्वायर ब्रैकेट का। इजी। चल अभी ये आंसर ओरली तुम लोग कर सकते हो बेटा। इसका क्या होगा बोल। अरे उसने 3 मोल AgCl दिया, तो कितना कितना बाहर होगा। कौन सा स्ट्रक्चर राइट है ABCD में से बताओ। एनी वन कैन ट्राई। अरे थ्री डी। मोल 3 मोल्स AgCl मतलब 3 क्लोरीन बाहर दे होना चाहिए, 3 क्लोरीन कहाँ पे बाहर है। कितना डी। सोच रहे हो भाई, डी में। क्लियर है। राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया। अच्छा 4 वाला भी आएगा बेटा, 4 वाला भी आएगा बेटा। ठीक है ना, 4 वाला भी पूछते हैं वो लोग कभी कभी। राइट। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा। अभी इसमें वो लोग ने क्या बोला है पता है क्या, देख इसमें से बोला है अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। कंडक्टिविटी किसका ज्यादा था, मोर द नंबर ऑफ आयंस, किसमें इसमें कितना आयंस बनेगा। एक भी क्लोरीन बाहर नहीं है तो 0। इसमें एक क्लोरीन बाहर है तो एक क्लोरीन का और एक स्क्वायर ब्रैकेट का, इसमें टोटल कितना आयन बनेगा, 2। इसमें 3 क्लोरीन और एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसमें 4 बनेगा। इसमें 2 क्लोरीन और एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो 3 बनेगा, तो सबसे ज्यादा इसका है कि नहीं बोलो बेटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। राइट। तो सबसे ज्यादा देख इसका, फिर 2 क्लोरीन वाले का, फिर एक क्लोरीन, फिर यहाँ पे कुछ नहीं था बाहर ये। तो वर्नर थियरी इज डन, नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर आइसोमेरिज्म। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आएगा, पहले मैं तुमको ना स्ट्रक्चरल आइसोमर बता देता हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर में बेटा लुक वी हैव टू स्टडी टू। वन इज स्टीरियो, स्टीरियो में विल स्टडी सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल, बट आई एम गोइंग टू डायरेक्टली टीच यू नाउ स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल पहले इजी होता है। स्ट्रक्चरल में फर्स्ट इज व्हाट बेटा, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है सुन लो अच्छी तरह से। ये दोनों कंपाउंड देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं बोलो देखो अच्छे से। अच्छा हु इज हाँ द सर। आयनाइजेबल पार्ट हियर आदिर। बाहर वाला सल्फेट है, यहाँ पे आयनाइजेबल कौन है, नाइट्रेट। नाइट्राइट। तो बेटा अभी तूने देखा बेटा नाइट्राइट। ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो आयनाइजेबल पार्ट चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, आयनाइजेशन आइसोमर। अच्छा तेरे को ऐसा प्रूव करने को भी बोलेंगे कि यहाँ पे ना क्या बाहर आ रहा है, तो देखो उसको कैसे करेगा बेटा, तो लेक्चर नंबर 11। ओ सॉरी 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 सॉरी।
अभी देख बेटा, ये अगर मैंने ऐसा डाला, इसका दो पॉसिबिलिटी मिल सकता था, या तो बाहर सल्फेट आ सकता था, दूसरा बाहर क्या आ सकता था, ब्रोमीन आ सकता था कि नहीं, बोल बेटा। देखना तो आयनाइजेबल पार्ट इज चेंजिंग और नॉट, टेल मी। हाँ ये देखना बेटा, दो स्ट्रक्चर बना के नहीं। अच्छा, अगर बेटा तुमको पता करना है कौन है, तो इसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा, बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ करूंगा, बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या देगा, बेरियम सल्फेट, व्हाइट पीपीटी देगा। ठीक है, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। इसको अगर मैं करूंगा बेटा AgNO3 के साथ, तो क्या देगा, AgBr। AgBr इज येलो पीपीटी। ठीक है, ओके। ये अगर पूछा तो ऐसा क्वेश्चन, अदरवाइज बेटा हम लोग को आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है, ओनली आयनाइजेबल पार्ट चेंजेस, फॉर्मूला रिमेन्स सेम। क्लियर, राइट। सर। अब ये सब एग्जांपल दिया, देख ना बेटा। यहाँ पे देख सल्फे, यहाँ पे देखिए, दो ब्रोमीन बाहर था, दो क्लोरीन, अभी यहाँ पे दो ब्रोमीन अंदर डाला और दो क्लोरीन बाहर ला, आयनाइजेशन आइसोमर, इजी। द नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, लिंकेज आइसोमर। ये बहुत बार पूछते हैं लिंकेज। नाउ हु इज द डोनर एटम हियर, वियति बेटा, N। एंड हु इज द डोनर एटम हियर, O। O. अरे बेटा मैं आपको बता देता, लिंकेज में कौन कौन आएगा आपको पता है बेटा, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O, देन थायोसाइनेटो S एंड थायोसाइनेटो N। फॉर्मूला दोनों का सेम, ओनली डोनर एटम चेंजेस, देखा ऐसा हम लोग लिखेंगे। या फिर क्या आएगा बेटा, साइनेटो एंड आइसोसाइनेटो, देख डोनर एटम चेंज होगा, दैट इज लिंकेज। एम्बीडेंटेड, इतने ही एम्बीडेंटेड है तुम्हारे सिलेबस में। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, याद रखना। कोऑर्डिनेशन में व्हाट विल हैपन बेटा, ये देख बेटा, यहाँ पे कोबाल्ट था और अमोनिया 6 था, और यहाँ पे साइनाइड 6 है, क्रोमियम। अब क्या हो गया बेटा, ये देखिए, इधर पे आ गया, ये इधर पे चला गया। देख कोबाल्ट इधर आ, कोबाल्ट के साथ में भी साइनाइड आ गया, और क्रोमियम के साथ में कौन आ गया, अमोनिया आ गया। इजी। तो क्या हो रहा है बेटा, लिगेंड्स के अंदर, मतलब दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज हो रहा है कि नहीं दोनों का, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देन बेटा लास्ट इज सॉल्वेट आइसोमर। अभी गौर से देखो बेटा इधर पे, व्हाट यू आर सेइंग। आदि बेटा यहाँ पे देख, क्लोरीन 3 बाहर है, पानी अंदर कितना, अंदर 6। अभी क्या होगा बेटा, एक क्लोरीन बाहर आएगा तो एक पानी बाहर, एक क्लोरीन अंदर आएगा तो एक एक वाटर मॉलिक्यूल विल कम आउट। So now can you see here, instead of 3 chlorine, it has become 2 chlorine and 1 chlorine has entered here. Now what will happen again? एक क्लोरीन अंदर आएगा एंड 1 वाटर विल गो आउट। तो देख 2 वाटर हो गया और अंदर 2 क्लोरीन हो गया, और वाटर यहाँ पे 4 हो गया कि नहीं। आई कैन राइट वन मोर हियर, व्हाट आई कैन राइट बोलो, 1 more water will go out. So here this will become 3 and 3 chlorine inside and 3 water outside. तो इन दिस केस बेटा वाटर इज गेटिंग एक्सचेंज, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर, ओके। सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चरल में हाउ मेनी आर देयर, आयनाइजेशन, लिंकेज, राइट, देन कोऑर्डिनेशन। आयनाइजेशन में आयनाइजेबल पार्ट चेंजेस, लिंकेज में डोनर एटम चेंजेस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बेटा इंटरचेंज ऑफ लिगैंड टेक प्लेस, एंड सॉल्वेंट में व्हाट विल हैपन, exchange of water will take place outside and inside the coordinate. One water will come outside, so one ligand will inside. Another water will come outside, another ligand will come inside. This was structural. Now we are going to go for what बेटा, geometrical iso। देखो आइसोमेरिज्म का अलग से वापस यहाँ पे दिया, देखा है। स्ट्रक्चरल में देख बेटा, ये मैंने सब बता दिया आपको, लिंकेज, आयनाइजेशन, राइट, सॉल्वेट एंड कोऑर्डिनेशन, राइट, क्लियर। अभी बेटा मैंने आपको ऐसा लिख के दिया, आपको आंसर बोलूंगा, व्हाट विल बी द आंसर, कम ऑन टेल मी। ये दिया है और ये, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज दिस, एनीवन ट्राई। देख एक पानी बाहर आ रहा है और एक क्लोरीन अंदर जा रहा है कि नहीं, तो विच आइसोमर इट इज। अरे आदि बता ना, सॉल्वेट हुआ कि नहीं। सॉल्वेट। हाँ, सॉल्वेट। फिर हाँ, ये वाले में कौन सा आइसोमर होगा बोल, 15 वाले में, यहाँ पे सर ब्रोमीन है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। हाँ, और यहाँ पे क्या था तुम्हारा बोलो बेटा, नहीं, कहाँ कोऑर्डिनेशन, सल्फेट है, अमोनिया 5 है, यहाँ पे अमोनिया 5 है, सल्फेट है, यहाँ पे बाहर क्लोरीन है। अरे बेटा यहाँ पे तो ब्रोमीन है ही नहीं ना बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ही नहीं, तो क्या होगा, नो आइसोमेरिज्म। अरे ओ मॉलिक्यूल, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए कि नहीं बोल। कैसे। अच्छा, ये दोनों में कौन सा आइसोमर होगा बता, 16 वाले में।
यहाँ पे डोनर एटम कौन था? सल्फर। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? तो लिंकेज वेरी आइसोमर। गुड, हो गया बेटा, अभी समझ में आ गया ना बेटा, खत्म। अभी बेटा हम लोग ज्योमेट्रिकल में जाएंगे। ज्योमेट्रिकल में हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे बेटा? सिस एंड ट्रांस। ये मैं तुमको ना यहाँ से बता देता, बहुत अच्छे से मैंने दिया यहाँ पे। सेम ऑन सेम साइड होगा बेटा, उसको हम लोग सिस बोलते हैं। सेम ऑन सेम साइड इज सिस। ये हम लोग का हो गया। अभी हम डूइंग बेटा ज्योमेट्रिकल। इन ज्योमेट्रिकल में फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू सिस, सिस एंड ट्रांस। अभी बेटा लुक हियर, सेम साइड में अरेंजमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सिस। 180 डिग्री पे दोनों सेम होगा उसको ट्रांस। 180 डिग्री पे दोनों से। तो बेटा अभी आप लोगों ने सिस ट्रांस वहां पे भी पढ़ा था ना। अभी देख मैं तुमको ऐसा दे रहा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दे रहा हूं स्क्वायर प्लेनार एंड बेटा टेट्राहेड्रल, एंड देन ऑक्टाहेड्रल में 6 ही होगा बेटा। वो मैं बताता हूं कैसा क्वेश्चन आएगा, वो डोंट वरी। टेट्राहेड्रल में हम लोग सिस ट्रांस नहीं पढ़ सकते, स्क्वायर प्लेनार में ही पढ़ते हैं। अच्छा चल बेटा, अभी मैंने ये लिया लिगेंड बेटा, देख एम ए। बेटा यहाँ पे दो लिगेंड है, ए दो लिगेंड एंड एल इज टू लिगेंड, एम इज मेटल। अभी हाउ आई कैन अरेंज दिस टू बेटा? अभी तू गौर से देख बेटा, ये दोनों मैंने क्या किया, एल एल आर ऑन द सेम साइड, ए आर ऑन द सेम साइड सिस। अभी इसका मुझे ट्रांस बनाने का रहेगा तो मैं क्या करूंगा, ये दो एल को ऐसा अपोजिट 180 डिग्री पे दोनों सेम होगा, 180 डिग्री पे दोनों सेम है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? ट्रांस। तो टोटल आइसोमर कितना बनेगा बेटा? दो बना के नहीं, देख बेटा 180 डिग्री पे दोनों सेम हो रहा है कि नहीं, देख ना, ए एल एल ट्रांस। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल भी मैं दे सकता बेटा। अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि बेटा दोनों साइड सेम हो, इवन ऑन वन साइड इफ इट इज सेम देन आल्सो इट विल बी सिस ट्रांस। अभी देख यहाँ पे मैंने बताया, तो देख यहाँ पे दोनों, यहाँ पे तू अगर बरोबर नहीं बताया है ये यहाँ पर, एक्चुअली में रॉन्ग है बेटा, रुक जा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने बेटा दोनों ए इस तरफ लिखा है, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है। अभी आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम नहीं है, चलेगा, एक साइड में दोनों ए है कि नहीं, बोल बेटा, राइट, और दूसरा में देख ऐसा बताऊंगा। अच्छा अभी यहाँ पर देखो बेटा, अरे ये ए था ना, अभी 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, बोलो ये 180 डिग्री बनता था कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांस। आप बोलोगे सर ये दोनों सेम नहीं, चलेगा, इवन ऑन वन साइड वन इज सेम देन इट इज व्हाट बेटा? ट्रांस। क्लियर है? 180 डिग्री पे दोनों सेम होगा तो ट्रांस, सेम ऑन सेम साइड देन सिस। अभी इसमें एग्जांपल मैं तुमको दूंगा, देख बेटा ऐसा। चल बेटा ये देख, इसमें क्या क्या बनेगा आदि बता चल फटाफट। प्लेटिनम है, दो अमोनिया दो क्लोरीन, तो यहाँ पे तूने दोनों अमोनिया डाला तो क्या हो जाएगा बोल? अरे सेम ऑन सेम साइड ना, दो क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस। बेटा ये सिस प्लेटिन है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यूजेज आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, मैं करा दूंगा आज ही। इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे बोलो बेटा? सो सीएल को दूसरे साइड हाँ रख। बस खत्म, वेरी गुड। ये देख बेटा, इसमें ऐसा बनेगा बेटा, अरे यार बनना भाई मेरे, जल्दी जल्दी। ये देख, देखा दोनों अमोनिया सेम साइड, अभी दोनों देख 180 डिग्री पे दोनों सेम साइड। ठीक है, तो ये सिस और ये ट्रांस। इसमें भी बेटा क्या करेगा, दो अमोनिया सेम साइड सिस, नाइट्रो दोनों सेम साइड, अभी दोनों को अपोजिट कर दे, ट्रांस, इजी। अभी यहाँ पे का एग्जांपल ले लेता बेटा। अच्छा दो पायरिड है, ऐसा सब समझ में आया ना, सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी यहाँ पर आ जाते बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिया है बोलो? देख यहाँ पे दो अमोनिया था और ब्रोमीन और क्लोरीन था, एटलीस्ट एक साइड में दोनों सेम है कि नहीं बोलो, तो सिस। और यहाँ पे देखना 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, बोलो ये 180 डिग्री पे ये सेम है कि नहीं, भले ये सेम नहीं हो तो ट्रांस। तो चार कोऑर्डिनेशन नंबर वाला स्क्वायर प्लेनर का हो गया। अभी हम लोग डायरेक्ट ऑक्टाहेड्रल में जाएंगे बेटा, ठीक है ना? नहीं उससे पहले अभी चारों अगर अलग होगा तो क्या होगा, चारों अलग होगा तो, ये देख बेटा चारों अलग होगा तो वो मैं बता देता हूँ, ऑल फोर आर डिफरेंट। अभी बेटा ये अगर ऐसा होगा तो इसमें कितना बना पाएंगे, तो बेटा एक को फिक्स कर ले, किसको फिक्स कर लेके बताओ चलो? एक को फिक्स कर ले भाई, ए को मैंने फिक्स कर दिया, तो ऐसा मैं कितने ए को मैंने फिक्स कर दिया, ए को मैंने क्या कर दिया बेटा? फिक्स। अब क्या करने का, ए को फिक्स किया तो अभी वेरिएबल कौन है? बी, तो पहली बार इसके अपोजिट में बी लिखना, फिर कौन आएगा? एक्स, फिर कौन है बेटा? वाई। बस बाकी का लिख दे। अभी बी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई। समझ में आ गया? मतलब हर एक को चांस देने का, एक को फिक्स करके बाकी तीन अपोजिट में आना चाहिए, फिर बाकी रिमेनिंग यू हैव टू राइट इट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग ने किसको फिक्स किया? लेटर से एक्स को फिक्स कर दिया बेटा, देख रहा है? तो एक्स के सामने पहले कौन आया? वाई, फिर एक्स के सामने कौन आया? ए, फिर अभी एक्स के सामने कौन आएगा? बी। देख, दिखा कि नहीं? बाकी अरेंज कर दे। तो वेन एवर दिस टाइप ऑफ कंपाउंड दे विल गिव टोटल हाउ मेनी पॉसिबिलिटी इज देयर बेटा? 3। इसका कोई सिस ट्रांस नाम नहीं है बेटा, याद रख। ओके, अभी देख बेटा यहाँ पर मैंने दिया, देखिए चारों, इसमें मैंने अमोनिया को फिक्स रखा है,
अभी अमोनिया के सामने मैंने पहले देख, इसमें अपने पास चारों अलग थे कि नहीं, इन दिस ऑल फोर वे डिफरेंट और नॉट, टेल मी। तो मैंने अमोनिया को फिक्स कर दिया, ले। तो पहले मैं इसके सामने क्या रखूंगा, ब्रोमीन। अब क्या करूंगा दूसरा, उसके सामने मैं क्या लाऊंगा, क्लोरीन। दिख रहा है कि नहीं? अमोनिया को फिक्स, इसके सामने क्लोरीन आया और पायरिडीन, बाकी अरेंज कर दो, थ्री पॉसिबिलिटी। अब बेटा चिलेट में भी सिस ट्रांस होता है। चिलेट मतलब देखना ऐसा ऐसा। अभी तुम देख रहा है बेटा, यहाँ पे सेम ऑन सेम साइड है। अच्छा, यहाँ पर बेटा इसको ट्रांस बोलेगे, क्यों? क्योंकि 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, बोलो बेटा, 180 डिग्री पे दोनों सेम है। अभी 6 वाला करेंगे बेटा, कितने वाला करेंगे, 6। तो अभी आप बोलोगे सर ये नोट्स में किधर रहते हैं, देख यहाँ पे है सब तुम्हारा। ये देख बेटा, सेम ऑन सेम साइड है कि नहीं, सिस। सेम ऑन अपोजिट साइड तो ट्रांस। हो गया। ये 4 वाला कर दिया, अभी मैं तुमको 6 वाला बताऊंगा। 6 वाले में बेटा क्या पॉसिबिलिटी होती है, देख बेटा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, आई शो यू, ये जब जाने दे। अब 6 वाला करेंगे। 6 वाले में बेटा मैंने देख तेरे को Ma4B2, इसमें छोटा वाला देखने का। टोटल 4 6 लिगेंड है कि नहीं, हम नहीं लिगेंड आते हैं, टोटल 6, 4 और 2। तो पहले मैंने 2 वाले को क्या लिखा, अपोजिट। तो बाकी ये सब इधर आएगा कि नहीं बेटा, ऐसे। अभी तुम मेरे को बताओ, ये 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, छोटा वाले को ही रेफरेंस में लेने का, तो ये ट्रांस हो गया। अच्छा, ये अगर आप देखोगे बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल डायमंड जैसा नहीं होता है क्या बेटा, डायमंड। अरे डायमंड जैसा ऐसा होता है ना बेटा, डायमंड जैसा ऐसा। ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल। तो बेटा अभी इसमें ना ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल में बेटा अभी जो सेम प्लेन पे होता है, मैं तुमको ना एक नंबर बता देता हूँ, वो बहुत जानना जरूरी है आपको, वरना आपको आएगा नहीं। तो जो सीटी का होता है और उसमें और एनसीईआरटी में लाइक बहुत फर्क होता है क्या? कुछ नहीं, सेम है सब, तुम लोग सीटी दे सकते हो सब। अच्छा करोगे इनफैक्ट आप लोग। ओके। खाली थोड़ा सीटी में चैप्टर एक्स्ट्रा है, 11th का भी आता है उसमें। एनीवेज बेटा, आ जाते हैं। देख बेटा, ये दिखा बेटा, ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं, बोल बेटा। अभी मैं तेरे को बताऊं क्या, अगर मैंने ऐसा तेरे को लिख के दिया रहता, प्लेटिनम, अमोनिया, 4 और 2 क्लोरीन, मैं बोलूंगा अभी बताओ इसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो पहला तू क्लोरीन को कहाँ पे रखेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, इसमें नंबरिंग कैसे होता है वो मैं बता दी, ये 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे सब जगह पे तूने क्या रखा, अमोनिया अमोनिया, अमोनिया अमोनिया अमोनिया। ये ऑक्टाहेड्रल होता है ऐसा, समझा क्या? अभी आप मेरे को बताओ, यहाँ पर आपका ये पोजीशन हम लोग जब गिनते हैं, तो बेटा ये दोनों अलग प्लेन में हो गए, ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ। अगर हम लोग इसका नंबरिंग कैसे देते हैं, हाउ वी गिव द नंबरिंग बेटा, लाइक दिस। दिस पोजीशन वी कॉल इट एज 1। अरे यार कलर अच्छा नहीं आ रहा, ये ले इसको। नहीं यार, क्या कलर लू, राइट। इसको 1 देते, ये क्या होता है बेटा, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 1 और 6 पे अगर दोनों सेम रहेगा तो बेटा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। अच्छा, अगर आप देखोगे बेटा, यहां पे से ये कोई भी पोजीशन लो, ये 2 ही होगा बेटा। आप बोलेगे सर मैं यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, ले सकता है, तो ऊपर से काउंट कर रहा है ना, तो 1 2 3 4। तो 1 2 पोजीशन होगा ना बेटा, तो दोनों, अगर 1 2 पोजीशन पे क्लोरीन होता है बेटा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देख बेटा, क्लोरीन को मैं भी कहाँ पे लूंगा बेटा, 1 2 पोजीशन पे ले लूंगा। यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, अमोनिया। और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा बेटा, क्लोरीन। ये बेटा ये वन सेम फेज पे आएंगे नहीं, सेम फेज में ना बेटा, ऊपर की तरफ है ना, तो इसको सिस बोलेंगे। तो बेसिकली तुमको क्या याद रखने का, 1 2 पोजीशन को सिस बोलते हैं और 1 6 को ट्रांस। इजी, क्लियर है? ये कब रहेगा बेटा, व्हेन देयर इज 2 लिगेंड, स्मॉल नंबर में जो 2 लिगेंड होना चाहिए। अब बेटा दूसरा मैं आपको कैसा दे दूंगा, सपोज बेटा वापस मैंने ऐसा आपको दे दिया, प्लेटिनम, 3 अमोनिया दे दिया और 3 क्लोरीन दे दिया, तो क्या करोगे? तो बेटा इसमें ना एक नया वर्ड आएगा बेटा, देखो। मेरा ये पोजीशन क्या था, बोलो बेटा, 1, यहाँ पे मैं लिख देता, अरे, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर बेटा मैंने यहाँ पर तीनों क्लोरीन ले लिया, क्लो कलर क्यों नहीं आ रहा है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो बेटा ये एक फेज बन रहा है कि नहीं बेटा, देखो।
अरे इट इज फॉर्मिंग वन फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल और नॉट, टेल मी बेटा। इसको अगर मैं शेड कर दूंगा तो ये फेस बना के नहीं। तो बेटा इसको हम लोग 1 2 3 पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पता है क्या? फेशियल। तो इसको हम लोग फैक लिखते हैं, फैक, फेशियल आइसोमर। ओके। और 1 2 6 पे डाल दूंगा तो बेटा इन दोनों को 1 2 और ये क्लोरीन को हटा के यहां पर मैं कहां पे डाल दूंगा? 6 पे। तो देखना 180 डिग्री पे दोनों सेम आ रहा है, तो बाकी सब जगह पे कौन होगा? अमोनिया। दैट इज नोन एज मेरिडोनल। मेरिडोनल मतलब अलोंग द मेरिडियन दोनों सेम है कि नहीं? देखना क्लोरीन क्लोरीन। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा मेरिडोनल मर आइसोमर, मर। अब मैं वहां पे लेके जाता हूं, देख बेटा इधर आ जा। देख बेटा ये से देख, अभी बेटा यहाँ पे देख रहा है तुम लोग, ये वाला पोजीशन कौन सा था बोलो बेटा? 1 2, देख 1 2 पे देखना दो क्लोरीन था, 1 2 पे सेम है तो सिस। ये यहाँ पे 1 और 6 पे बेटा देख रहा है कि नहीं? ट्रांस। अब समझेगा आपको अच्छे से। देख बेटा ये 1 2 पे दोनों सेम है तो सिस, और ये 1 6 पे तो ट्रांस। फिर 3 वाले में मैंने बताया था ना, देखना बेटा एक फेस बनता है कि नहीं? एक फेस पे तीनों सेम है तो उसको क्या कहेंगे बेटा? फेशियल। और देखना 1 6 1 2 और 6 पोजीशन है, देखना ये 6 पोजीशन था कि नहीं? उसको मैरिडोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैरिडोनल। समझा क्या भाई? बोलो। एक फेज में तीनों हिस्सा सब सेम रहेगा तो फेशियल, 1 6 पे दोनों सेम रहेगा तो मैरिडोनल। तो ये हो गया तुम्हारा ज्योमेट्रिकल खत्म। अब हम लोग को कहां पे जाने का है बेटा? ऑप्टिकल। विच आइसोमर? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल एकदम छीन दिए बेटा। देख बेटा ये तुम्हारा हो गया ना बेटा 1 2 पोजीशन। देख रहा बेटा ये 1 6 है ट्रांस, और ये 1 2। देख ये क्लोरीन वाला एग्जाम्पल भी दे दिया बेटा, और ये देखना बेटा 1 2 पोजीशन सेस। क्लियर? देख MAB3 मैंने बोला था ना बेटा, देख मैं ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 6 पे ना 1 2 और 6 पे मेरिडोनल। और यहाँ पे देख बेटा कहाँ पे? 1 2 3 बेटा ये फेज एक सेम बनेगा कि नहीं? देख बेटा, अरे ऑक्टाहेड्रल होता तो ये एक चेहरा सेम हो जाता था कि नहीं? बोल बेटा ये देख ना, एक फेस बन रहा है ना तो फेशियल। देख बेटा क्लियर है? और देखिए एग्जाम्पल भी वो लोग ने दिया है, देख रहा है? और यहाँ पे देख तीनों क्लोरीन एक फेज बना रहा है कि नहीं? इजी। ऑप्टिकल में क्या होता है बेटा आपको पता है? हम लोग ने ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया। मैं कंपाउंड को डालूंगा पोलैरीमीटर में, अगर बेटा वो राइट में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में लाइट को घुमाएगा तो लेवो, ल ल लेफ्ट, ल ल लेवो, राइट को डेक्स्ट्रो। चलो देख अभी हो गया बेटा ये सब, जाने तो बेटा ये सब, हाँ हाँ अभी अंदर पे आ जाता है। अब ये ना ऑप्टिकल एक्टिव में बेटा वी ओनली स्टडी 6 कार्बन। टेट्रा और स्क्वायर प्लेनर हम लोग करते हैं, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर में ऑलरेडी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाता है। कंपाउंड होना चाहिए और उसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। याद आ रहा है इंस्ट्रूमेंट का नाम था पोलैरीमीटर। जो लाइट को राइट में घुमाएगा वो डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट में घुमाएगा वो लेवो, लेवोलोटेटरी डेक्स्ट्रो। चल बेटा अभी मैंने इसमें 4 वाला हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है। स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं होगा? प्लेन और सिमेट्री। टेट्राहेड्रल पॉसिबल होता है लेकिन उसको सेपरेट करना बहुत टफ है, तो विल स्टडी ओनली 6 वाला। ठीक है अभी चल बेटा ऐसा आएगा बेटा, ये देख बेटा मैंने अभी ये ऑब्जेक्ट लिया है, बाइडेंटेड दिया है बेटा। ए मतलब दो दो डोनर आइटम है, देखिए बाइडेंटेड है ऐसा, दो दो दो। इसके सामने मैं मिरर रखूंगा, मुझे क्या इमेज दिखाई देगा? बोल आदि, उल्टा हो जाएगा कि नहीं? बोलो, ये ऐसा दिखाई देगा कि नहीं? क्या ये दोनों सुपर यस। इम्पोजिबल है? नहीं ना। देखना इसको उठा के नहीं। ऐसा रखना, तो ये क्या होगा? एक को डी लिख तो ये दूसरा क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? एल। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा इसमें। तो इसमें मैं क्या ले सकता हूँ? ई एंड 3 टाइम्स, ऑक्जेलेटो 3 टाइम्स। देख बेटा एग्जाम्पल देख, ऑक्जेलेटो 3 टाइम्स लिया कि नहीं? देख रहा है? इसका भी मिरर इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा कि नहीं? देख, तो 2 आइज में डेक्स्ट्रो लेवो, डेक्स्ट्रो लेवो, खत्म। राइट? अभी देख ये वाला लेगा ना तो इंटरेस्टिंग केस बन जाएगा इसमें। देख बीबी को मैंने ऐसा लिया है, अभी इसका मिरर इमेज लेगा तो सेम आएगा कि नहीं? बोल बेटा। अरे बेटा इसका मिरर यस इमेज सर। आएगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बेटा। ट्रांसफॉर्म देखना 1 6 पे 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। लेकिन अगर मैंने बेटा बी को इस तरफ ले लिया, देखना इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? बोल बेटा देखना, देख रहा है? यस सर। ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएगा बेटा, तो वी कॉल इट एज ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांसफॉर्म। ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांसफॉर्म। यार चलना मेरा फैक्ट्री को अभी बेटा मैंने 1 2 पोजीशन पे ले लिया बी को, बाकी इसको ऐसा रखा है। अभी इसका मिरर इमेज बनेगा ना बेटा, देखना नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। तो इसमें टोटल आइसोमर कितने बने बेटा? 3 बने। दिख रहा है कि नहीं?
तीन बने, लेकिन इसमें क्या था बेटा, डी और एल, और ये तेरा तीसरा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है ओनली टू। चलो बेटा, अगर मैंने आपको ये बोला बनाने के लिए, तो क्लोरीन को आप रेफरेंस लो बेटा। पहले क्लोरीन को ऊपर नीचे, तो इथिलीन डायमाइन आजू बाजू में आएगा, इसका मिरर इमेज सेम होगा कि नहीं, तो दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांसफॉर्म। बट लेकिन अगर 1 2 पे क्लोरीन को लोगे तो बेटा देख ऐसा, तो अब ये इसका मिरर इमेज उल्टा आएगा कि नहीं, देख बेटा ऐसा हो जाएगा ना बेटा, ये देखना, दीज आर टू नॉन सुपर इम्पोजिबल। इजी, राइट। तो ये यहाँ पे दिया है बेटा, देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बेटा दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। देखना ये दिया है ना बेटा, देखिए इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसमें ये है, ये है। ये मत देखिए, चल ये देख 1 6 पे है, तो बेटा क्या हो जाएगा बोल बेटा, ट्रांस वाला, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है बेटा। देख बेटा यहाँ पे डाला ना, देख 1 2 पे डाला, तो देख ना मिरर डालेगा तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, क्या ये दोनों सुपर इम्पोज होगा, नहीं। लेकिन अगर मैंने क्लोरीन ऊपर नीचे लिख दिया रहता तो देख एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाती ना बेटा, तो ये क्या हो जाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांसफॉर्म। देख इसका ये मिरर इमेज बनेगा, तो एक को डी लिख देने का, एक को एल, बराबर है, क्लियर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमेरिज्म बेटा। देख यहाँ पे ही सब दिया है बेटा, देख मैंने वो बताया था ना पहला, ये जब ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। फिर ये तेरा देखिए सिस, ये डी और एल भी, और ये सिस और ट्रांस भी, सॉरी सिस फॉर्म है बेटा ये दोनों। फिर ये देख बेटा, ये तेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म देखा, अरे क्लोरीन क्लोरीन ऊपर नीचे लिया तो ट्रांस फॉर्म तेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्लियर, राइट। ये देखना बेटा, ये देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि देखना इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसका मिरर इमेज भी सेम आएगा कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। अभी आपको खाली ना यूजेस पूछेंगे, यूजेस, यूजेस, ठीक है बेटा, यूजेस। हाँ तुम लोगों को एक एक इंपॉर्टेंट आने वाला है बेटा, ऑर्गेनोमेटेलिक, ये मेरे को बताने दो बेटा। बैक बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, नॉर्मली है ना, मैं ना मेटल और लिगेंड के बारे में पढ़ता था, तो ये डिस्टेंस मेरे को काफी ज्यादा आता था, बिग। लेकिन बेटा जब मैंने मेटल को कार्बोनिल के साथ किया ना, तो ये डिस्टेंस क्या आ रहा था बेटा, स्मॉल आ रहा था। क्या आ रहा था, स्मॉल। तो मैं सोच में पड़ गया, अरे ये क्यों स्मॉल आ रहा है। स्मॉल कब होता है बेटा, आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो बड़ा डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है तो छोटा हो जाता है कि नहीं। तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा यहाँ पे यार बहुत मतलब मल्टीपल बॉन्ड बनता रहेगा, मतलब पाई बॉन्ड भी बनता रहेगा। तो वो लोग ने फिर स्टडी किया बेटा, मेटल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होता है, विच ऑर्बिटल इज देयर बेटा, डी ऑर्बिटल, दिस ऑल आर डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब मेटल था बेटा, कार्बोनिल के पास लोन पेयर है, तो वो डी ऑर्बिटल में दे देगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अच्छा तुमको पता है डी ऑर्बिटल में भी खुद के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं। तो इसमें वो लोग ने क्या देखा कि भाई है ना, डी अपना इलेक्ट्रॉन है ना क्या करता था, इसके अंदर वेकेंट पी ऑर्बिटल होता था बेटा, तो ये उसके साथ बॉन्ड बना देता, तो मल्टीपल बॉन्ड बना के नहीं, लेकिन ये पाई बॉन्ड होता था बेटा। तो मल्टीपल बॉन्ड बनने की वजह से उसका साइज क्या होगा, छोटा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मेटल नॉर्मली, देखना ये तेरा लिगेंड था, ये लिगेंड जब मेटल के साथ बॉन्ड करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन साइमल्टेनियसली मेटल भी अपना बेटा, ये देखना ये कार्बोनिल का कार्बन के अंदर ये पी ऑर्बिटल था कि नहीं, तो इसमें अपना वो इलेक्ट्रॉन दे देता था। बैक बॉन्डिंग, नॉर्मली लिगेंड बॉन्ड बनाता है कि नहीं, लेकिन इसमें मेटल उल्टा वापस उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग और सिनर्जी इफेक्ट। बैक बॉन्डिंग और सिनर्जी इफेक्ट, और उसके मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से बेटा मेटल और कार्बोनिल जब रहता है तो बॉन्ड छोटा बन जाता है। देखना यहाँ पे, देखना कार्बोनिल ने भी बनाया, और ये मेटल मेटल जो बनाता है वो पाई बॉन्ड बनाता है बेटा। दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। और हाँ बोलो। सर इसमें भी वी कांट से कि सिग्मा और पाई इज हैविंग लाइक एन अट्रैक्टिव इफेक्ट ऑन ईच अदर, राइट? नहीं नहीं, इसमें बेटा प्रॉपर बॉन्ड बनते हैं बेटा, सिग्मा पाई। ये देखना बेटा नहीं ये, नहीं सर, लाइक सिग्मा और पाई में कोई अट्रैक्टिव इफेक्ट नहीं होता ना इसमें? नहीं नहीं अट्रैक्टिव नहीं, इसमें बैक बॉन्ड बनाता है वो वापिस, इसलिए इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। दोनों, अरे पाई बॉन्ड तेरा वीक होता है ना बेटा, राइट ना। ये देख ना, ये जब बनाता है तो पाई हाँ बॉन्ड, और ये लिगेंड, लिगेंड कौन था, सीओ, सीओ कार्बोनिल लिगेंड होता है, वो सिग्मा बनाता है। देखना ये पाई बॉन्ड, देखना मेटल का खुद भी बाद में बॉन्ड दे रहा है, देखना। देखना इसमें डी ऑर्बिटल का मेटल इंटू इसका कार्बोनिल के अंदर वेकेंट पाई ऑर्बिटल होता है, उसमें वो देता है। और यहाँ पे क्या होता था, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बोनिल टू मेटल, वो नॉर्मल सिग्मा बनता था, इसको सिनर्जी इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके वजह से बेटा मेटल कार्बोनिल जो भी रहेगा उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बेटा ये बॉन्ड लाइन छोटा होता था, क्लियर है। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं यूजेस। यूजेस में आपको क्या क्या पूछेगी पहला खाली सुन लो, जो जो मैं बोल रहा हूं उसका खाली ध्यान रखो, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले तो बेटा आपको पता है क्या, हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन है ना बेटा,
कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसमें कौन है बेटा? इट इज अ हेमोग्लोबिन इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ Fe। क्लोरोफिल प्लांट में होता है तो उसमें मैग्नीशियम, इट इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, क्लोरोफिल। हम लोग एक विटामिन B12 खाते हैं, उसका नाम होता है बेटा साइनो कोबालामाइन, तो उसमें कौन है? कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना बेटा? सो कोबाल्ट इज द सेंट्रल, इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। तो एमसीक्यू में क्या पूछेगा बेटा? इन क्लोरोफिल विच मेटल इज देयर? मैग्नीशियम। हेमोग्लोबिन Fe। इन विटामिन B12 कोबाल्ट। फिर बेटा है ना, मेडिसिन में भी यूज होता है बेटा। बेटा जिसको भी कैंसर हो जाता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिस्प्लेटिन। क्या यूज करते हैं? सिस्प्लेटिन फॉर ट्यूमर्स। आपको यही याद रखना है, सिस्प्लेटिन। अच्छा, कभी कभी ना बेटा लेड पॉइजनिंग हो जाती है बेटा। लेड पॉइजनिंग जिसको हो जाती है ना बेटा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? EDTA। EDTA इज यूज फॉर लेड पॉइजनिंग। EDTA इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फाइंडिंग हार्डनेस इन वाटर। EDTA बेटा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कि नहीं? बोलो बेटा। राइट। देन बेटा हम्म, ये याद रखना है बेटा, विल्किंसंस कैटलिस्ट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। ये विल्किंसंस कैटलिस्ट है। पीएच मतलब फिनाइल, पी मतलब फॉस्फोरस 3 टाइम्स है, और ये रोडियम क्लोराइड। विल्किंसंस कैटलिस्ट। और बेटा आपको पता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते थे बेटा, रिमेंबर? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम लोग क्या यूज करते थे पता है बेटा? अरे सिल्वर प्लेटिंग करते थे। सिल्वर प्लेटिंग में पता है हम लोग क्या लेते थे? हम लोग AgNO3 यूज नहीं करते थे। व्हाट वी यूज टू यूज बेटा, रिमेंबर? सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। याद आ रहा है कि नहीं? ऐसा यस होता था, सर। याद? सो इट इज अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, इट इज यूज इन व्हाट बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैन यू जस्ट रिपीट पीएच और आरएच क्या था? फिनाइल और पीएच इज फिनाइल एंड पी इज फॉस्फोरस। ठीक है, नहीं वो ऐसा सर, नहीं पूछे। आरएच आरएच। आरएच इज रोडियम। मेटल होता है एक, रोडियम। अरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मेटल होना चाहिए कि नहीं? वो रोडियम है। रोडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। हाँ ठीक है। राइट, ये सब इतना सब नहीं पढ़ना है, जो जो मैंने बोला वही याद रखना बेटा। हाँ, कलर वाला मैं बताना भूल गया बेटा। कलर आपको पता है डी ब्लॉक में पढ़ा था, वैसे ही बेटा ये देखना, 3-2 में स्प्लिट होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन शुड जंप ईयर, तो उससे कलर मिलेगा। लेकिन बेटा इसमें भी आपको एक चीज याद रखना है, जंपिंग में। ये पॉइंट याद रखो, ये खाली एक पॉइंट, ये इस पे एमसीक्यू आता है। देख बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेज लार्ज स्प्लिट। ओके, लार्ज स्प्लिट हो जाएगा तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तो इसको ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा। तो एनर्जी बेटा, अगर फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, बट वेवलेंथ क्या होगा? कम। वेवलेंथ क्या होगा? कम। फील्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? कार्बन डोनर इज मोर देन नाइट्रोजन बेटा। अच्छा, तो बेटा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्प्शन उसको, अरे बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो देखना ऊपर जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लेना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। तो एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मोर, बट वेवलेंथ क्या हो जाएगा? उल्टा। जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसका वेवलेंथ कम। क्लियर है? वेवलेंथ कम। ओके। अभी एग्जाम में तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगे बेटा? ऐसा पूछेगे, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा? सपोज मैंने आपको 4 लिगेंड दिया है, देखिए, चार, 1 2 3 4 5, किसका सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे स्ट्रांग कौन है? साइनाइड। फिर अमोनिया, फिर देखना इसमें अमोनिया थोड़ा कम है, इसमें अमोनिया भी है लेकिन वाटर वाटर थोड़ा कम है कि नहीं? राइट, इसमें अमोनिया और क्लोरीन है तो क्लोरीन भी कम है कि नहीं? इसमें सब वीक है। तो बेटा इसका एनर्जी पूछा रहता तो सबसे ज्यादा एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम, तो वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम। राइट बेटा, एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा? मिनिमम। क्लियर है? ओके। देख अभी यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा है, पढ़ो। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन फॉर द कॉम्प्लेक्स। कौन सबसे स्ट्रांग है इन तीनों में बेटा? ये सबसे स्ट्रांग है। राइट ना बेटा? स्ट्रांग है तो उसका एनर्जी ज्यादा, लेकिन वो लोग ने क्या बोला है? वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगा इसका? सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका होगा? वाटर का। तो कौन सा आंसर मैच करेगा बोलो बेटा? ये वाला। देख रहा है? अरे एकदम सिंपल, स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। बस, इजी। हो गया बेटा पूरा चैप्टर फिनितो। वी आर डन विद द चैप्टर। ओके, क्लियर। कल तुम लोग कितने बजे आने वाले हो?
क्या आने वाले हो भी है कि नहीं आने वाले हो? नहीं, क्या कराओगे? कुछ नहीं, डाउट सॉल्विंग अगर रहेगा तो ठीक है ना, वरना तुम लोग रात को बोलना, मैं तुम्हारा रात का कुछ रिवीजन कराना होगा तो बता देना मेरे को, ठीक है? टुमारो आई बी देयर इन द क्लास एट 3:30, तो जिसको आना है डाउट सॉल्विंग के लिए वो लोग आ सकते हैं। आई थिंक मिहिका और वो सब लोग कोई आने वाले, जोया वगैरह, डाउट सॉल्विंग के लिए। तुम्हारे लिए कोई नया टॉपिक करना है तो आई डू, डोंट वरी, ठीक है? कल नहीं, कल रात को ओके करूंगा अगर सर। करूंगा तो। चलो देन, बाय ठीक बाय है एवरीबॉडी। सर, एक डाउट था मेरे को। बोलो, बोल बोल, क्या डाउट है? तो बायोमोलिक्यूल्स की वेटेज क्या होती है? वेटेज तो बेटा यार तू कर लेना बेटा, वेटेज तो सब बरोबर है उसका।